This is Nidhi and welcome back to my channel all about law. Today I am back with another video from Sale of Goods Act 1930, and that is conditions and warranties. Conditions and warranties, this is an important topic from our Sale of Goods Act, and today we are going to discuss the same. Now, conditions and warranties, these are described and these are defined under Section 12 of the Sale of Goods Act. Now, what happens whenever there is any contract of sale, the buyer as well as the seller, okay, both the parties, they make certain statements, they make certain stipulations, they make certain representations to each other regarding the mode of delivery, regarding the type of goods, regarding the mode of payment, etc. So, such stipulations or representations, they are known as either conditions or warranties. Now what happens, जो भी ये stipulations या representations दी जाती हैं, sometimes these stipulations are very important. Okay, these stipulations are of vital nature. These stipulations are the main purpose of the contract. Okay, so if such stipulations are forming the base of the contract, they are most important for the contract, and on these stipulations only the entire contract of sale is dependent, then such stipulations or representations are known as conditions. Okay, जो ऐसे representations which are essential to the main purpose of the contract, मतलब उन stipulations या उन representations के ऊपर ही पूरा का पूरा आपका जो contract of sale है वो dependent होता है, तो ऐसी stipulations को हम बोलते हैं conditions. Okay, now similarly अगर मैं बात करूं warranties की, तो warranties are those stipulations which are not basically essential to the main purpose of the contract. Okay, वो हमारे contract of sale का main purpose नहीं होते हैं, rather they are collateral to the main purpose of the contract. Collateral से मतलब ये हुआ they are basically additional or they are basically subsequent statements or representations, okay, which are required for the contract of sale. Then such stipulations are known as warranties. अब कंडीशंस एंड वारंटीज, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज देयर आर टू पार्टीज, अमन एंड रमन. ठीक है, अमन गोज टू रमन फॉर परचेज ऑफ अ बाइक. उसे एक ऐसी बाइक चाहिए जो 50 किलोमीटर्स का बेसिकली रन रेट दे रही हो. ठीक है, 50 किलोमीटर्स का एवरेज दे रही हो, 50 किलोमीटर्स का एवरेज देती हो. ठीक है, अब रमन ने अमन को ये बाइक सेल करी है ये बोलकर कि हाँ ये 50 किलोमीटर्स का एवरेज देने वाली है. जब अमन उस बाइक को यूज करता है तो पता चलता है कि ये बाइक 50 किलोमीटर्स का एवरेज नहीं दे रही है, ये बाइक केवल और केवल 30 किलोमीटर्स का एवरेज दे रही है. ठीक है, तो यहां पर जब उसने बाइक परचेज की थी तो मेन स्टिपुलेशन क्या था, एवरेज का. ठीक है, उसी पर रिलाय करके उसने वो बाइक परचेज की थी. अब अगर वो बेसिकली जो स्टिपुलेशन था उसे मैं बोलूंगी कंडीशन. ठीक है, क्योंकि वो मेन पर्पस था उसके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का. अब अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, इफ देयर इज ब्रीच ऑफ कंडीशन, देन ब्रीच ऑफ कंडीशन गिव्स द बायर द राइट टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, द बायर हैज द एक्सक्लूसिव राइट दैट ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड ही कैन आस्क फॉर रिफंड ऑफ द प्राइस बीइंग पेड, और ही कैन ऑल्सो आस्क फॉर the delivery of another good in place of that defective good. ठीक है, तो अगर कंडीशन का ब्रीच होता है, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होती है, तो इन दैट केस द बायर इज हैविंग द राइट टू आइदर कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और he can ask for refund also and he can claim further damages also. क्लियर है? अब इसी एग्जाम्पल में सपोज अमन ने जब रमन से बाइक परचेज की तो अमन ने साथ में ये भी कहा था कि वो बाइक ब्लैक कलर की होनी चाहिए. अब रमन ने जब ये बाइक सेल करी तो वो एवरेज तो दे ही नहीं रही है, साथ में वो रेड कलर की है. ठीक है, तो यहां पर अगर उसका कलर वेरी हो रहा है तो क्या यहाँ पे वेरिएशन इन दैट कलर वो मेन पर्पस है उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का? नो, वो एक एडिशनल स्टेटमेंट उसने दिया था, एक एडिशनल स्टिपुलेशन दिया था. तो ये जो कलर का स्टिपुलेशन था उसे हम बोलेंगे वारंटी. तो अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होती है, ठीक है, अब वो ब्लैक कलर की बाइक चाहिए थी लेकिन वो रेड कलर की हो गई. ठीक है, तो ब्रीच ऑफ वारंटी के केस में कभी भी बायर के पास कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट करने का राइट नहीं होता है. ठीक है, वो गुड्स को रिटर्न नहीं कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता है, वो रिफंड क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन द बायर कैन क्लेम ओनली डैमेजेस. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, प्लीज रिमेंबर दैट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन द बायर हैज द राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, claim damages, claim the refund. Okay, all this he can do. But in case of breach of warranty, what the buyer can do? The buyer can only and only claim damages.
Okay. Now, breach of condition can be treated as breach of warranty, but the vice versa is not true. मतलब breach of condition अगर होती है तो उसे हम breach of warranty treat कर सकते हैं, लेकिन breach of warranty को कभी भी breach of condition treat नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? Because बहुत बार ऐसा होता है कि जो कंडीशन है उसे ही हम वारंटी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वारंटी मान लेते हैं। तो द बायर हैज द राइट, ओके, ये बायर के पास राइट होता है कि वो कितनी बार कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर लेता है। ठीक है, ब्रीच ऑफ कंडीशन को वो क्या ट्रीट करेगा? ब्रीच ऑफ वारंटी। सपोज अब इस एग्जांपल में अगर वो 50 किलोमीटर्स का एवरेज नहीं दे रही है, 30 का दे रही है, एंड अमन ने बोला कि चलो ठीक है, लेट इट बी, मैं फिर भी एक्सेप्ट कर लेता हूं इस बाइक को, आई डोंट वांट एनी रिफंड, आई जस्ट वांट डैमेजेस का क्लेम। तो ऐसे केसेस में कितनी बार क्या होता है कि बायर वेव्स द राइट, ओके, बायर क्या करता है? उस राइट को वेव ऑफ कर देता है कि ठीक है, गुड्स डिफेक्टिव निकले, वो मेन कंडीशन थी, लेकिन इट्स ओके, ही इज ओनली आस्किंग फॉर डैमेजेस। तो अगर बायर ने कंडीशन को वेव ऑफ करके उसे वारंटी मान लिया है, तो इन दैट केस ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। सेकेंड केस ये होता है कि कितनी बार इफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी फर्दर परफॉर्म्ड, अगर वो इम्पॉसिबल हो जाता है परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का, तो इन दैट केस ऑल्सो समटाइम्स ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। Okay, so I hope this was all about conditions and warranties. In the upcoming videos, I'll be discussing about the major implied conditions and major implied warranties which are being given under this chapter. I hope you liked the video and you understood about conditions and warranties. In case of any doubt, please feel free to post your query in the comment section. Okay? Stay tuned. Have a nice day and goodbye.